Hi guys, how are you all? So to elevate in your preparation of auditing, as you can see on your screen, I'm here with the standards of auditing 701. That is communicating the key audit matters in the independent auditor's report. Okay, friends, you have to compulsory learn this standards name because you need to be writing down in your examination. Okay, so let us revise this 701. कम्युनिकेट करना की ऑडिट मैटर्स को कहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में ओके सो कम्युनिकेटिंग द की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दैट व्हाट इज अ की ऑडिट मैटर. If any question is asked regarding the 701, you have to write it down compulsory this paragraph first of all. Okay. So what is a key audit matter? Those matter in the independent auditor report within the auditor's professional judgment were of most significance. Okay. Were of most significance in the audit of which period? Current period. Okay. In the audit of the financial statement of a current period. Basically, what is happening? A lot of matters discussed with the TCWG and the management, and out of those matter, as per standards of auditing 260, out of those matter, a few matter has been selected by the auditor, which in the auditor's professional judgment were of most important matter that need to be disclosed to the users of entities report. Okay, right. I hope now you have cleared that what is the key audit matter. Next is the applicability. It means that where the auditor is required to disclose the key audit matter in the auditor report. Okay. In case of the audit of a listed entity, the auditor is required to compulsorily give the reporting on the key audit matters. And in case of an unlisted company, whenever the auditor feels that there is a circumstance, there is something happening that the key audit matters need to be addressed in the auditor report. Okay. And the third one is required by law or regulation. Okay. Whenever the law and regulation compulsory tell the auditor to disclose that, the auditor is required to disclose. Okay. So there's a three thing. In case of a listed entity, MCQ question can be asked on this point that in case of a listed entity, key audit matter is a compulsory. Okay, right. And one thing you need to be remembered that if the auditor is giving the disclaimer of an opinion, in that case 701 prohibit for issuing any key audit matters. Okay, so जब भी auditor disclaimer of opinion देता है, basically disclaimer of opinion कब होता है? जब limitations होती है, imposed होती हैं, उस केस में जब ऑडिटर को बहुत सारे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाते, उस केस में वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है. ठीक है, उस केस में वो कभी की ऑडिट मैटर्स नहीं दे सकता. राइट. Now, the next topic is communicating the key audit matter is not a substitute of. Okay, substitute of मतलब आप इन चारों पोजीशन में ये नहीं कह सकते कि मैंने की ऑडिट मैटर्स में डिस्क्लोजर दे दिया है. Now I don't require to give the reporting under this 4 points. Okay, what is this 4 point? First of all is a disclosure in the financial statement as per the financial reporting framework, whatever is applicable. Okay, in that case you have to compulsory disclose in the financial statement notes to account whatever disclosure is required. You cannot tell that I had seen that in the key audit matters, that's why it is not important to disclose in the financial statement. No. You have to compulsorily disclose in the financial statement, and that cannot be substituted by giving the key audit matter paragraph. Okay, then in case the auditor is required to give a modified opinion, or in case the auditor is required to give the reporting as per the 570, that is there is some event or transactions are there that a material uncertainty exists relating to the event or condition that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. It means that अगर कोई भी ऐसा event या condition हो जाता है जो बताते हैं कि कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न में काम नहीं कर सकती, उस केस में ऑडिटर को एक गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्टिंग करनी होती 570 के हिसाब से. एंड देन सेपरेट ओपिनियन ऑन द इंडिविजुअल मैटर. कोई भी ऐसा मैटर जिसपे ऑडिटर को कंपल्सरी एक सेपरेट ओपिनियन देना होता है. इन चारों केसेस में ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि मैंने की ऑडिट मैटर में दे दिया है, इस वजह से मैं इन चारों में रिपोर्टिंग नहीं करूंगा. ओके, आई होप अंटिल नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू. Now, what is the benefit of communicating? What is the purpose of communicating the key audit matter? Okay, so there's a 4 point in this. First of all, it enhances the communicative value of auditor report. Okay, जो भी auditor का report होता है ना, उसमें वो basically key audit matter बता देता है, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ सच में ऑडिटर ने कुछ काम किया है, बिकॉज अ लॉट ऑफ डिस्कशन उसने किया होगा ऐसे 260 के हिसाब से, TCWG के हिसाब से, तभी उसमें से उस मैटर में से कुछ मैटर्स ने सिलेक्ट किया, इसका मतलब ऑडिटर ने सच में काम किया है.
तो ये कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाता है ऑडिटर के रिपोर्ट को कि हाँ ऑडिटर अच्छे से हुआ है इस बार, ठीक है। एंड देन सेकंड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं इंटेंडेड यूजर्स को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा और कौन से मैटर्स ऐसे हैं और कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ कीवर्ड मैटर में लिखने की वजह से इनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। थर्ड वन इज असिस्ट द इंटेंडेड यूजर टू अंडरस्टैंड द एंटिटी। एंटिटी को समझने में बहुत हेल्प होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया गया है, क्या क्या एजम्पशंस लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ मेथड लगाए गए हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प होती है। एंड देन बेसिस ऑफ फर्दर एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट से जब ऑडिटर बात करता है तभी वो कीवर्ड मैटर सिलेक्ट कर पाता है। तो अगर वो ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट से बात करेगा तो उसको और ज्यादा समझ में आता है कि एंटिटी कैसे काम कर रही है, तो फर्दर एंगेज हो सकते हैं मैनेजमेंट से। लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेटिंग कीवर्ड मैटर। Yes. So first of all, enhance the communicative value of the auditor's report. Additional information to the intended user. Assist the intended user to understand the entity and the basis of further engagement with her management. Okay. Right. I'm already told to you that a key audit matter selected from the matter which is communicating with a TCWG. Right. Now, what is a out of a lot of matter, how our auditor is determined that what are the key audit matter. ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए तीन चीज वो बेसिक लिखते हैं, REM। ओके, व्हाट इज REM? तो ऐसा कोई मैटर जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट होता है, वो तो पक्का पक्का उसको दिखाना होता है, वो मेरे लिए की ऑडिट मैटर ऑटोमेटिकली बन जाता है। बिकॉज एज पर एस 315 के हिसाब से जब भी कोई भी रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट का ऐसा कोई स्टेटमेंट होता है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो वो अपने आप क्या हो जाते हैं, की ऑडिट मैटर हो जाते हैं। देन ई से क्या आपका कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी किसी अदर कंपनी के साथ अमालगमेटेड हो गई या मर्जर हो गया या फिर कोई फायर वगैरह लग गया, कोई साइक्लोन आ गया, कोई फ्लड आ गया जिसकी वजह से मेजर इम्पैक्ट पड़ा है कंपनी पे, तो कोई भी ऐसे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शंस अगर होता है तो वो भी की ऑडिट मैटर बन जाते हैं, बिकॉज उसको ऑडिटर को बताना होता है कि यूजर्स को कि हाँ देखो ये हो गया कंपनी में। ओके, एंड द थर्ड वन इज अ मैनेजमेंट जजमेंट। ओके, जहाँ पे भी मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व होता है वहां पे भी यूजर्स को पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट ने कौन कौन से जजमेंट, कौन से अजम्पशन के हिसाब से इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है, तो वो भी क्या हो जाता है, की ऑडिट मैटर बन जाता है। ओके, सो बेसिकली REM ये आपको की ऑडिट मैटर्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। एंड द सर्कमस्टेंसेस व्हेन इट इज नॉट कम्युनिकेटेड। ओके, जब भी लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है, प्रिक्लूड्स करता है कि आपको की ऑडिट मैटर्स को नहीं डिस्क्लोज करना है, वहां पे आप डिस्क्लोजर नहीं दे सकते। ओके, एंड द सेकंड वन, अगर ऑडिटर को ऐसा लगता है कि अगर मैं जो दिखाऊंगा, जिसे डिस्क्लोज करूंगा, उससे जितना बेनिफिट होगा पब्लिक को, उस बेनिफिट से ज्यादा पब्लिक को लॉस हो सकता है, उस केस में भी ऑडिटर नहीं डिस्क्लोज करता की ऑडिट मैटर। ओके, तो बेसिकली जब ऑडिटर को लगता है कि अगर मैं इसको दिखाऊंगा और इससे जो होने वाली बेनिफिट है ना, बेसिकली वो पब्लिक को उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा, इन दैट केस ऑडिटर कम्युनिकेट नहीं करता की ऑडिट मैटर्स। ओके, एंड वन मोर थिंग, आप ये देख लेना कि की ऑडिट मैटर्स को कम्युनिकेट करना होता है TCWG से, मतलब बिफोर रिपोर्टिंग इन योर ऑडिट रिपोर्ट you have to first of all tell to your key audit matters to the TCWG that I had selected this key audit matter to be shown in the auditor's report. Okay, and अगर मान लो आपने कोई भी फिक्स नहीं भी किया है तो भी आप ऑडिटर को ये बता दो कि हाँ मैंने कोई भी की ऑडिट मैटर्स को डिसाइड नहीं किया है, इस बार मैं कोई भी की ऑडिट मैटर नहीं दूंगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, ये भी आपको कम्युनिकेट करना होता है। एंड वन मोर पॉइंट इज देयर कि की ऑडिट मैटर पैराग्राफ जो आपका होता है ना, उसमें वो लिखना होता है कि मैं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे ओपिनियन दे रहा हूँ, मेरा कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर मैटर पे ही ओपिनियन दे रहा हूँ। ओके, आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो गया हो। फर्स्ट लेट अस फटाफट फटाफट समराइज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैड रीड दैट व्हाट इज अ की ऑडिट मैटर, those matter which in the independent auditor's report were of most significance in the audit of the financial statement of a current period. Okay, now what is the applicability, कहाँ कहाँ applicable होता है? इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी कंपल्सरी देना होता है, देन जब भी ऑडिटर को लगता है कि नहीं नहीं यहाँ पे मुझे देना है तो, एंड जब भी लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि यहाँ पे आपको की ऑडिट मैटर पैराग्राफ को देना है। ठीक है, इन केस अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर ने दिया है तो वहां पे वो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ नहीं दे सकता, चार की जगह की ऑडिट मैटर नहीं ले सकता।
डिस्क्लोजर पक्का पक्का करना पड़ेगा, जहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन करना है वहां पे करना पड़ेगा, जहाँ 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न पैराग्राफ में रिपोर्टिंग करनी है वो करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी इंडिविजुअल मैटर पे, किसी भी इंडिविजुअल मैटर पे कोई सेपरेट ओपिनियन देना है तो वहां पे भी करना होगा। वहां पे ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने कीवर्ड मैटर में दे दिया इसलिए मुझे ये नहीं देना है, ठीक है। एंड देन पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, to enhance the communicative value of the audit report, okay, to enhance the communicative value, then additional information to the intended user, assist the intended user to understand the entity and basis of further engagement with the management, okay. Key audit matter selected from the those matter which is communicated with the TCWG as per standards of auditing 260, okay. Determine what are the key audit matter out of a lot of matter, how the auditor selected that what are the key audit matter, okay. So basically that is a REM. If the matter is of a higher assessed risk of material statement, तो वहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन हो रहा है वो वाले मैटर पे रिपोर्टिंग करनी होगी। एंड अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल लाइक अकाउंटिंग एस्टिमेट, ओके, अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल असेट कितने साल का होगा, उसका यूजफुल लाइफ क्या होगा, उस केस में भी ये की ऑडिट मैटर बन जाते हैं। कौन कौन से केसेस में की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट नहीं करना होता, जब लॉ एंड रेगुलेशन मना करते हैं कि आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, एंड सेकंड केस अगर ऑडिटर को लगता है कि इससे होने वाला जो बेनिफिट है वो होने वाले लॉस से ज्यादा है, पर अगर कंपनी खुद डिस्क्लोज कर देती है कोई भी मैटर तो उस मैटर पे ऑडिटर को सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिस्क्लोज कर सकता है, ओके। आई होप दिस रिवीजन वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।